see the screen, the other classification of the resources is non-renewable. Renewable we have already discussed. Renewable कभी खत्म नहीं होते, जो renew कर सकते हो, reuse कर सकते हो, like water. And tell me the example of the renewable resources we have done already yesterday. What are the example of renewable resources? Avishi, say it properly. Air, water, and very good, Trustee. Air, water, and soil. Yes, solar energy. Solar energy means sun. Yes, sunlight. Yes, very good. Very good. This answer, Suman Kumari. Very good. These are the renewable resources. Reuse कर सकते हैं. Billions of the years का sun की light खत्म नहीं होगी, air खत्म नहीं होगी, पानी खत्म नहीं होगा. पानी का तो खैर there is some these days there is a problem, but in our earth there is a most of the earth, our earth is by the water, right? Sunlight, soil, these are renewable. You can reuse, you can, yes, reuse. बहुत सारे billion years के बाद भी sunlight खत्म नहीं होगी. But the other type of natural resources, these are also natural resources, non-renewable word लग गया. What is non? जो renew नहीं कर सकते हैं. Once it has been used, तो आप उसको वापस नहीं ला सकते हो. और कुछ टाइम बाद ही कभी ना कभी यूज करने के बाद खत्म हो जाएगी. Right? If you are taken out and you are using this, so it will be exhaustive resources. One day it will be finished. Yes. No, water is not. Non-renewable sources are the example of the fossil fuels. Okay, I'm telling you the other classification of the resources is non-renewable resources. Non-renewable resources are those natural resources that are available in limited quantity. Yesterday I have told you non-renewable sources are limited quantity, but renewable sources are unlimited quantity. This is the difference now. तपस्या उपाध्याय. तो ये जो है वो लिमिटेड क्वांटिटी में आप यूज करोगे, वंस डे इट विल बी फिनिश्ड, राइट? हो सकता है कि 100 इयर्स तक और भी यूज हो जाए सब चीजों का, लेकिन आफ्टर द 100 इयर्स, आफ्टर द 150 इयर्स इट विल बी फिनिश्ड. सो इट इज exhausted resources. Then it will make it again and make 1,000 years to take it, to renew करने के लिए. So this is limited in quantity. These resources cannot be renewed or replenished in short duration. कम टाइम में हम इसको renew नहीं कर सकते हैं. That is, और ये exhaust हो सकते हैं. That is why it is called non-renewable resources. Therefore, they are known as exhaustive resources also. Example are the coal, natural gas, petroleum, etc. Coal है, natural gas है, petroleum है, etc. These are the non-renewable resources. I am telling you, I am explaining one by one. First point is, you can see the screen. See the screen. Fossil fuels. Fossil fuels like coal and petroleum and non-renewable resources, they are found deep inside the earth crust and are made by the natural process over the time of over the very many centuries लग गए इसको, right? Fossil fuels को बनने में, fossil fuels के examples है coal and petroleum. They are found deep inside the earth. Earth crust में अंदर जाने पर deep, बहुत ज़्यादा deep जाने पर earth crust में deep हमको जाके मिले. They are made by the natural process. ये natural process के द्वारा बने over the many centuries. बहुत ज़्यादा centuries लग गए इसको बनने में. How? I will tell you. Their quantity is limited and they take 1,000 of years to get renewed. जब इतनी सेंचुरी बनने में लग गए, if you have been used up, इसको अगर आप यूज कर दोगे, then it will again take 1,000 years. So examples of the fossil fuels are coal, petroleum, natural gas, etc. These days we are using, है ना? कोल कहाँ से मिलता है? माइन से हम खोद के निकालते हैं, right? माइन से हम कोल निकालते हैं, पेट्रोलियम निकालते हैं, नेचुरल गैस निकालते हैं. All these are deep inside the earth. Earth crust में मिलती हैं सब चीजें, हम लोग निकालते हैं, right? Dig out करते, earth को dig out करके, drill करके. So fossil fuels के example है coal, petroleum, natural gas. We will discuss in detail one by one. First coal, then natural gas and petroleum.
तो फॉसिल फ्यूल्स कहाँ से मिलते हैं? दे आर फाउंड इन द डीप अर्थ क्रस्ट में। ये कोल हो, चाहे पेट्रोलियम हो, चाहे नेचुरल गैसेस, इट विल टेक अ, इन्होंने बहुत लंबा टाइम ले लिया, ऑलरेडी नेचुरल प्रोसेस के थ्रू ऑलरेडी बने, ये ओवर द मैनी सेंचुरीज लग गई इनको, राइट? नाउ वी आर यूजिंग, द ह्यूमन बीइंग्स आर यूजिंग दिस, लेकिन इतना यूज करेंगे अगर हम लोग एंड वेस्ट करेंगे तो वन डे विल इट विल कम, इट विल बी फिनिश्ड, एक दिन ऐसा आएगा कि फिनिश हो जाएगा, और उसको वापस बनने में कितने साल लग जाएंगे? बिलियंस, 300 बिलियंस ईयर्स अगो। कैसे बना था? आई विल टेल यू द व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ दिस। इट इज नॉट इन द हिस्ट्री, इट इज नॉट गिवन इन द बुक, बट आई विल टेल यू इन द शॉर्ट। बहुत साल पहले जब हमारी अर्थ थी वो फॉरेस्ट थे, बिकॉज लैंड, जो लैंड इज कवर्ड विद द फॉरेस्ट, तब ये डोमेस्टिक एरियाज और बिल्डिंग्स और कंस्ट्रक्शंस नहीं हुआ करते थे। 300 बिलियन ईयर्स और मिलियन ईयर्स अगो की बात करें, इफ टॉकिंग अबाउट, तो वेजिटेशन था, फॉरेस्ट था, हमारी जो लैंड थी अर्थ का मोस्ट पार्ट कवर्ड विद द फॉरेस्ट। तो स्मॉल प्लांट्स दिखे हुए मर गए, देन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स उसमें अर्थ क्रस्ट में दबते गए प्रेशर से सॉइल के अंदर अंदर अंदर, देन इट विल टेक अ, मेड बाय द नेचुरल प्रोसेस के थ्रू, बैक्टीरिया के थ्रू इट विल प्रेशराइज हुआ, वो वेजिटेशन नीचे दिखे हुए, डेड प्लांट एंड डेड, जो भी वेजिटेशन होता है, वेजिटेशन मीन्स डेड प्लांट, स्मॉल स्मॉल प्लांट्स जब डिके हो जाते हैं, डिके एंड डेड प्लांट्स, एनिमल्स ऑल्सो, यस, जब वो डिके होते हैं तो सॉइल के अंदर वो नीचे दबते जाते हैं, प्रेशराइज होकर के, वो और प्रेशराइज होकर के बहुत बिलियन ईयर्स और 100 ईयर्स लग गए इनको बनने में, तो वो नीचे दबते गए और सॉइल के प्रेशर्स में आकर के, यस, और नेचुरल प्रोसेस के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा, देयर इज अ नो एयर, तो प्रेशर्स और हीट के, बिकॉज देयर इज अ हीट आल्सो इन इनसाइड द डीप क्रस्ट, अर्थ के नीचे बहुत ज्यादा प्रेशर है, बहुत ज्यादा हीट है, तो वहां पर ये बने और बहुत मैनी सेंचुरीज लग गई सबको बनने में। फिर हम लोगों ने अर्थ को डिग आउट करके, राइट, ड्रिल करके हमने कोल निकाला, राइट, कोल मीन्स से निकलता है, हम उसको खोद के निकालते, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस, ऑल दीज आर द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, हम ये अर्थ को डीप इनसाइड में मिलता है, हम उसको डिग आउट करके निकालते हैं, ड्रिल करके निकालते हैं। अब तो नाउ मशीन्स आर अवेलेबल ऑल्सो, रिफाइनरी मशीन ऑल्सो, ऑल दीज वी विल गेट। तो बहुत साल लग गए इनको बनने में। नाउ कम ऑन द पॉइंट, कोल, स्किन इज विजिबल टू ऑल, राइट? फॉसिल फ्यूल्स क्या होता है? व्हेन एनी फ्यूल्स बर्न इट गिव्स अ हीट, दैट इज फॉसिल फ्यूल। सो ऑल दीज आर वी आर यूजिंग इन many purposes. We will discuss coal. First is coal. It is also known as black diamond. हम इसको ब्लैक डायमंड भी कहते हैं। डायमंड इज वेरी शाइनी, आई नो दैट, वी ऑल नो दैट, बट इट इज कॉल्ड ब्लैक डायमंड, इसको ब्लैक डायमंड कहते हैं। कोल इज यूज्ड एज अ फ्यूल to generate the electricity, and it in the factories uses, and the steam engine also. Where it is used? Coal is used in the factories for generate the electricity, for the steam engine. In many ways we use the coal. Then second point is natural gas. तो कोल बनने में बहुत टाइम लग गया। आफ्टर द लॉन्ग पीरियड, डेड एनिमल्स और डेड प्लांट्स इन द अर्थ क्रस्ट के नीचे दब गए, और हाईली टेम्परेचर से, कि जब अर्थ क्रस्ट के नीचे जाओगे तो इतना प्रेशर है और इतनी हीट है अंदर, देयर इज नो एयर, एयर पार्टिकल्स तो बहुत ही मुश्किल से बनेंगे। इफ यू आर जस्ट गो डीप एंड डीप इन द अर्थ क्रस्ट के नीचे जब जाते जाओगे तो हाई टेम्परेचर के बीच में ये बनना शुरू हुआ। बहुत इट मेक्स ऑल 1000 ईयर्स लग गए थे इनको बनने में, 300 million years ago. Right, the next point is natural gases.
Yes, my voice is coming now. Yes, students, there is no issue. There is a network issue, I think. Now my voice is coming to all, right? Okay, I'm again just going to share my screen. Start now. Yes, you can see. You can see it is visible. The screen is visible to all, right? And my voice is also coming. There is no issue now. Okay, come back to the point. हम point पे वापस आते हैं. Natural gas, right? Natural gas. Avishi, pay attention. Concentrate, everyone. So natural gas कैसे मिलती है? So natural gas is also inside the deep crust. It is also found under the crust. हमारी अर्थ की क्रस्ट में पाई जाती है. डीप हम उसको ड्रिल आउट करके निकालते हैं. ड्रिलिंग मशीन लगाते हैं, बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं जहां पर हम उसको ड्रिल करके, हमारी अर्थ को ड्रिल करके, डग आउट करके हम अंदर से नेचुरल गैस निकालते हैं. Because I told you, if you just go deep inside the earth crust, there is a lot of pressure and there is a lot of heat, students. राइट हम अंदर अगर अर्थ क्रस्ट के नीचे जाएंगे तो इतना हीट और इतना प्रेशर है, राइट? बिकॉज आवर अर्थ इज वेरी बिग. इफ यू ड्रिल आउट, तो हम नेचुरल गैस भी ड्रिल आउट करके निकालते हैं. ड्रिलिंग मशीन्स होती हैं बड़ी बड़ी. तो नेचुरल गैस इज ऑल्सो फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट, अंडर द क्रस्ट. नेचुरल गैस इज यूज एज अ फ्यूल. फिर नेचुरल गैस को निकाल करके हम फ्यूल की तरह यूज करते हैं. इट इज कॉल्ड compressed natural gas. Compressed natural gas, that is a full form of CNG gas. Everybody knows that. Everyone is aware about that CNG gas. Is it so? CNG gas सबको मालूम होगा क्या है. What is the full form, Vaishnavi? Compressed natural gas. Compressed word क्यों लगता है? To suggest with the name कि इस गैस को, जब नेचुरल गैस को अंडर क्रस्ट से हम ड्रिल आउट करके निकालते हैं तो क्या होता है, और हम उसको नेचुरल गैस को फ्यूल की तरह यूज करते हैं, राइट? इलेक्ट्रिसिटी बनाने में, गैस नहीं बनाने में, और ट्रांसपोर्ट में. नाउअडेज यू कैन सी दैट कि ट्रांसपोर्ट में हम लोग जो है ऑटो रिक्शा और ये सब जो है वो लोग कौन सी गैस यूज कर रहे हैं? सीएनजी गैस, राइट? कौन सी गैस यूज कर रहे हैं शिव गुप्ता? सीएनजी गैस. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीएनजी? compressed natural gas, right Piyush? So compressed, why it is the name is compressed? क्योंकि जब नेचुरल गैस को निकाला जाता है क्रस्ट से तो उसको हम प्रेशर अप्लाई करके उस गैस को कंप्रेस कर देते हैं. द नेम इज क्लियर विद द नेम कंप्रेस. हम उसको प्रेशर अप्लाई करते हैं. जब बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं तो गैस कंप्रेस हो जाती है. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. देन इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल. ट्रांसपोर्ट में यूज करते हैं सीएनजी गैस को. Some wells dug out into earth produce only natural gases. Natural gases are the good alternative to petrol and diesel also, and it is used as ये alternative है पेट्रोल और डीजल का. जो गाड़ियाँ पेट्रोल और डीजल चलती है वो सीएनजी गैस से भी चलती है, right? Nowadays CNG gas is where it is used, where we are using in transport. सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट भी यूज कर रहे हैं सीएनजी गैस को. So this is an alternative to petrol and diesel, and it is used as a compressed natural gas. It burns also easy. जब ये नेचुरल गैस ट्रांसपोर्ट में हम यूज करते हैं तो कोई भी गैस हो, कोई भी फ्यूल हो, हम उसको बर्न करते हैं. बर्न करने में क्या होता है? इट गिव्स द हीट. एनी पेट्रोल, आप बोलोगे पेट्रोल और डीजल को हीट करने पे वो बर्न कैसे होता है? हम वी आर बर्निंग. जो हम पेट्रोल और डीजल हमारी गाड़ियों में डालते हैं एक्चुअली वो बर्न होता है. जब हम स्टार्ट करते हैं गाड़ी तो हमारी गाड़ी का, हमारे ट्रांसपोर्ट का जो पेट्रोल और डीजल है वो बर्न होता है. Whenever any petrol burns, it gives the heat. Whenever, yes, कभी भी कोई फ्यूल जब बर्न होता है तो क्या देता है स्टूडेंट्स? Whenever any fuel burns, it gives what? Heat. Yes, Garima Tyagi. Very good. Only Garima Tyagi is paying attention only. And rest of the students, they are only listening. Heat. Any fuel, any fossil fuels, if you burn, it gives the heat. हम combustion करते हैं, fuels जलता है और उस heat से हमारी गाड़ी जो है वो आगे की तरफ चलती है. Any vehicle, they are using CNG or petrol or diesel. Any transport, जो भी आपका transport materials है,
वो चाहे पेट्रोल यूज कर रहा हो चाहे डीजल यूज कर रहा हो, वो बर्न होता है, उसे हीट मिलती है, उस हीट से गाड़ी आगे की तरफ चलती है स्मूथ. So natural gases are the good alternative of petrol and diesel. It comprises of the natural gases, right? So this natural gas is consists of methane gas. Mainly जो natural gas बनती है वो methane gas से बनती है. It is not written in your book. I am telling you, जो natural gas जो होती है, natural gas में the main gas is methane gas. Methane gas होती है सबसे ज़्यादा 95% होती है, और बाकी other gases होती हैं. And natural gas is produced under the crust. हम उसको ड्रिल आउट करके निकालते हैं. आदर्श, आयुष, नेचुरल गैस को हम अंदर अर्थ में, अर्थ क्रस्ट से हम उसको ड्रिल आउट करके निकालते हैं, देन उसके बाद कंप्रेस करते हैं, सीएनजी गैस बनाते हैं, देन उसके बाद हम उसको यूज करते हैं. दिस इज वेरी गुड अल्टरनेटिव ऑफ पेट्रोल एंड डीजल. इट कंसिस्ट मेनली मेथेन गैस, दैट इज 95%. Now the next fossil fuels of example of the fossil fuels is petroleum. Petroleum. What is petroleum? It is very liquefied fuel है. कोल तो क्या हो गया? These are the three examples ना fossil fuels के. मैंने क्या बताया? कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम. कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, ये सब हमारे अंदर अंडर द क्रस्ट मिलती है. हमारे को डीप इनसाइड द अंडर क्रस्ट के मिलती है हमको, है ना. पेट्रोलियम क्या हुआ? लिक्विडफाई हो गया. नेचुरल गैस गैसियस फॉर्म हो गया. कोल क्या हुआ? सॉलिड फॉर्म हो गया. राइट. तो पेट्रोलियम से ऊपर नेचुरल गैस मिलता है. अगर हम और अंडर क्रस्ट जाएंगे, इफ यू जस्ट गो डीप इनसाइड द क्रस्ट, तो क्या होगा? नेचुरल गैस मिली, देन उसके बाद और नीचे जाएंगे तो पेट्रोलियम, क्योंकि लिक्विड चीज जो होती है वो भारी होती है गैस से. गैस इज लाइटर देन द पेट्रोलियम. तो नेचुरल गैस ऊपर मिलती है, पेट्रोलियम से ऊपर मिलती है हमको, राइट. बिकॉज अंडर द क्रस्ट देयर इज टू मच हीट एंड प्रेशर. आई टोल्ड यू, रिमेंबर दिस पॉइंट ऑलवेज. पेट्रोलियम. Petrol is also known as the mineral oil or crude oil. Crude oil क्या होता है? जैसे raw oil. It is not refined. ये refined नहीं होता है. Crude oil means raw oil. इसको हमें refine करना होता है. Petroleum is also known as mineral oil or crude oil. This liquid जो mineral होता है, ये mineral होता है एक तरीके से, और raw material होता है, raw liquid oil होता है. हमें refine करते हैं और refinery machines होती हैं, right? This liquid material is refined to make the fuels such as petrol, diesel, cooking gas, and kerosene oil, plastic, cosmetic, and lubricants. अब होता क्या है, जब हम इसको ये क्रूड ऑयल जब हम बहुत निकालते हैं, इफ यू गो, इट इज फाउंड इन द डीप इनसाइड द अर्थ ऑल्सो, और अंडर द सी फ्लोर ऑल्सो. जो हमारा सी है, समुद्र है, समुद्र के जो सी बेड है, समुद्र के भी अंदर नीचे चले जाओ सी बेड पे, एट द बॉटम ऑफ द सी, तो वहां पर भी क्या होगा? वहां पर भी उस समय भी क्या हुआ था? जो वेजिटेशन से, स्मॉल प्लांट से, स्मॉल एनिमल्स से, जब वो डिके हो गए, मर गए, तो वो क्या हुआ? सी बेड पे दबते गए. और वहां पर भी हम लोग क्या करते हैं? कभी आपने देखा है बॉम्बे में रिफाइनरी में, जब हम बॉम्बे की बात करते हैं तो वहां पर भी रिफाइनरी मशीन है. एंड अदर कंट्रीज ऑल्सो. हमारे आसाम में है ना, आसाम में भी रिफाइनरी मशीन है जहाँ से हम क्रूड ऑयल निकालते हैं, राइट. गॉट इट एवरीवन? तो हम क्रूड ऑयल जो होता है सी बेड और अंडर द क्रस्ट में निकालते हैं हम लोग. तो जब हम जाते हैं और जब क्रूड ऑयल निकालते हैं, दैट इज वेरी रॉ ऑयल, उसको हम रिफाइन करते हैं, राइट. उसके बाद उसको फ्यूल बनाते हैं, पेट्रोल और डीजल यूज करते हैं. तो जब हमें क्रूड ऑयल मिल जाता है, व्हेन यू विल गेट द क्रूड ऑयल अंडर द क्रस्ट, तो हम इस ऑयल को बॉयल करते हैं डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पर. इट इज नॉट इन द बुक, सो यू हैव टू लिसन
Yes, today is a network issue. Today is a network issue, students. Yeah, now my voice is coming, Naina. Today is a network issue. I don't know what is happening. What is happening now? Okay. Okay, Sruchi Gupta, my voice is now coming, right? There is no issue. Right? And the screen is visible. Garima Tyagi, okay. I'm complete this topic, and after that I will just solve your queries. Right? पेट्रोलियम पे थे हम लोग. पेट्रोल is known as mineral oil और crude oil बोलते हैं. इसमें मिनरल्स पाए जाते हैं. दैट इज व्हाई इट्स मिनरल ऑयल एंड क्रूड ऑयल. क्रूड ऑयल मीन्स रॉ ऑयल. इसको हम डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे इसको बॉईल करते हैं. जब अर्थ की क्रस्ट से अंडर द सी फ्लोर से, सी के फ्लोर से भी निकाला जाता है, और डीप इनसाइड द अर्थ और अंडर द सी फ्लोर ऑल्सो. ठीक है. तो हम क्या करते हैं, ड्रिल करते हैं, इसको ड्रिलिंग करते हैं, ड्रिलिंग वेल्स एंड डीप इनटू द अर्थ और अंडर द सी बेड, और उसको निकाला जाता है. इट इज टेकन आउट बाय द ड्रिलिंग वेल. नेचुरल गैस को, कोल को, पेट्रोलियम को, इन सबको कैसे निकाला जाता है? इट इज टेकन आउट बाय द ड्रिलिंग वेल्स डीप इनटू द अर्थ क्रस्ट और सी बेड. समुद्र के नीचे जाने पर भी जो अर्थ क्रस्ट है उससे हम ड्रिलिंग करके. इट्स नॉट पॉसिबल. Okay, I will come to the point. Because time is very short, I'm complete this topic. So what happens, हम जब क्रूड ऑयल निकाल लेते हैं ड्रिल करके, तो उसको बॉईल करते हैं डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पर. दैट इज, इट इज नॉट रिटन इन योर बुक, राइट? तो हम उस क्रूड ऑयल को डिफरेंट टेम्परेचर पे बॉईल करते हैं. अलग अलग टेम्परेचर पे बॉईल करते हैं तो हमें अलग अलग मिलता है, राइट? जैसे कि अगर हम 120 टेम्परेचर पे अगर बॉईल करते हैं तो पेट्रोल और डीजल मिलता है. कुकिंग गैस के लिए हम इस क्रूड ऑयल को अलग टेम्परेचर पे इसको बॉईल करते हैं. केरोसिन के लिए अलग, लुब्रिकेंट्स के लिए इस क्रूड ऑयल को अलग टेम्परेचर पे. अगर डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर से बॉईल करना स्टार्ट किया, राइट? फर्स्ट हमको 120 टेम्परेचर पे एलपीजी गैस मिली. एट द 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे जब बॉईल किया हमने, इट इज नॉट रिटन इन योर बुक. पेट्रोलियम को, क्रूड ऑयल को जब हमने 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर पे बॉईल किया निकालने के बाद, आफ्टर द ड्रिलिंग आउट, राइट, देन इट विल बॉईल एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो एलपीजी गैस मिली हमको. देन अगेन उसको और टेम्परेचर दिया तो पेट्रोल और डीजल. देन अगेन लुब्रिकेंट्स. तो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे हम उसको, लुब्रिकेंट चिपचिपा पदार्थ होता है जो हम मशीनरी में यूज करते हैं, राइट? Taken out the drilling wells deep into the earth or under the seabed. Seabed matlab you just go to see, under the bottom of the sea there is a seabed. There is also a earth crust. So petroleum, you know already got it, right? Now the next point is nuclear energy. It is also in the classification of resources. ये भी resources of nuclear energy का, it is classified as a non-renewable resources. Nuclear, it is suggests with the name, the fuel used for the nuclear energy. वो fuel जो nuclear energy में use होता है is generally uranium. Uranium है. In this process we use uranium, which is a limited supply, so we classify it as a non-renewable resources. ये non-renewable resources में क्यों आता है? क्योंकि uranium भी limited supply है. Production of the electricity from the nuclear energy does not release any carbon dioxide. Thus, use of nuclear energy is safe for the environment. हम न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट लगाते हैं और वहां पर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं by using the, generally using the uranium. My voice is not coming. Now the next topic is coal.
So coal will be discussed tomorrow because coal is a very big topic, and I will tell you in the detail. Tomorrow I will tell you in the detail. It's very interesting also how the formation of the coal and how you will get the coal from the mines, or types of the coal also, and formation of the coal, and what the energy from the coal also. You will get the energy from the coal. How? And activity is also there in your book. So this is very interesting chapter. So coal topic we will discuss tomorrow. So here it is. Any problem? Non-renewable resources, I think it is clear. Any query you can ask me. See, there is a difference of advantage and disadvantage. Later when I told you there is a difference between the presence. Renewable resources unlimited quantity में, like air, sunlight, unlimited quantity में मिलते हैं. Or non-renewable resources is called exhaustive also. This is found in the limited quantity. आप यूज करते रहेंगे लेकिन एक दिन तो खत्म हो ही जाएगा ना, राइट? सो दिस इज a limited quantity में होता है. Now you can ask. There 5 minutes are left only. Any query? Raise your hand. Yes, rename it Nishu Srishti Gupta. Yes, yes, Srishti. Ma'am, I want to ask that you told that you have uploaded the chapter on protocol, but there was no chapter. There is no chapter in protocol. E-portal. Yes, yes, ma'am. E-portal. There is. You said you will upload it. हाँ, within 2 days. Actually, yesterday I told you. Okay. Yes, ma'am. आपको भी कल मिल जाएगा, right? कौन सा चैप्टर चाहिए आपको? The previous chapter, ना? Because whatever I taught you, I will upload only that particular chapter. That is 4 only. Previous chapter I didn't taught you. मैंने आपको नहीं पढ़ाया है. केवल आप चैप्टर 4 में आपको जो है और चैप्टर 3 तक मिल गए हैं, सृष्टि? Yes, ma'am. I'm asking about 4th chapter. You are talking about the 4th chapter? Yes, ma'am. Okay, I will upload it because I didn't upload it now. Okay, I ma'am. didn't upload it soon. Very soon, right? Okay, ma'am. Thank you, Srishti, ma'am. any query about this chapter 5? Fossil fuels and non-renewable anything? No, ma'am. Not now. Any query? Okay. Any confusion? No, ma'am. You can ask. Yes, Nishu. Thank you, ma'am. Nishu. मैम साइंस के असेसमेंट में क्या आएगा? Science assessment, whatever I taught you. Chapter 4. मैम मेरे को 1 to 4 चैप्टर के प्रोटोकॉल नहीं मिल रहा है. मैम मेरा काम नहीं हो रहा है. 1, 2, 3 के तो मिल जाएंगे आपको. 4 का अपलोड नहीं हुआ है केवल. ओके मैम. ओके मैम. थैंक यू मैम. ओके मैम. ओके. आराध्या. यस मैम. Any problem? Aradhya? Yes, Aradhya. Raise your hand. Any query about 4 chapter भी upload नहीं हुआ है. Soon I will upload it. Aradhya Agrawal. Ayush. Yes. Aradhya Agrawal. Oh, ma'am. Raise your hand if you have a query. No. No problem at all. Okay, Piyush, Kushwaha, any problem? No, ma'am. Ayushi?